Hey everyone, welcome back to another video. Now we'll continue with section 42. हमने last video में I think section 41 तक we have already done. Now section 42 this is we are dealing with arrest of persons. ठीक है, तो section 42 क्या बोल रहा है? Protection of members of the armed forces from the arrest. ठीक है, मतलब कि armed forces के जितने मेंबर हैं, मतलब एयर, नेवी एंड अपना आर्मी फोर्सेस के जितने भी मेंबर हैं, दे आर इम्यून और दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द अरेस्ट. हाउ? सबसेक्शन 1 स्टेट्स दैट नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 35, 39 एंड 41. अब 35 सेक्शन 35 स्टेट्स दैट व्हेन पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट विदाउट वारंट. ठीक है. सेक्शन 39 स्टेट्स अरेस्टिंग to ascertain the name and residence of the person, and section 41 is arrest by magistrate. ठीक है, तो इन तीनों sections के अंदर जो arrest हो रहे हैं ना, उन arrest में कोई भी armed forces का member cannot be arrested. Okay, no member of the armed forces of the union shall be arrested for anything done or purported to be done by him in the discharge of his official duties except for obtaining the consent of the central government. ठीक है, except after obtaining the consent of the central government. तो इन तीनों sections के अंदर, ठीक है, कोई भी armed forces of union का member जो है, you cannot arrest him until, like, you cannot arrest that person until you have the consent of central government. You cannot arrest that person for discharging his official duties. मतलब जब वो अपना official काम कर रहा है, अपना official duties के अंदर कोई भी act कर रहा है, तो आप उस act के अंदर उसको कभी भी arrest नहीं कर सकते except after you have taken the consent or you have taken the permission from the central government. ठीक है. Subsection 2 states the state government may by notification direct that the provisions of subsection 1 shall apply to such class or category of the members of the force charged with the maintenance of public orders may be specified therein wherever they may be serving, and thereupon the provision of that subsection shall apply if for the expression central government occurring therein the expression state government were substituted. Simply सबसेक्शन 2 में बोल रहा है कि जो क्लासेस हैं और द कैटेगरी ऑफ मेंबर्स ऑफ द फोर्स हैं, मतलब कि कौन नेवी के कौन से मेंबर्स, नेवी, एयर या फिर आर्मी के कौन कौन से मेंबर्स और उनके कौन कौन से कैटेगरी ऑफ पीपल जो हैं वो इस सबसेक्शन के अंडर इम्यून है, वो कौन बताएगा? स्टेट गवर्नमेंट बताएगी बाय नोटिफिकेशन. ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट विल डायरेक्ट कि कौन से मेंबर्स ऑफ यूनियन आर्म्ड फोर्सेस को ये जो अपना 42 का सबसेक्शन 1 है वो अप्लाई करेगा. ठीक है, so that would be notified by the state government. और जब स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई कर रही है तो इसमें जो हम सेंट्रल गवर्नमेंट का कंसेंट ले रहे थे, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन ले रहे थे, उसके बाद हम स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेंगे जब स्टेट गवर्नमेंट बता देगी. ठीक है, कि ये आप आर्म फोर्स के पीपल को यू कैन नॉट अरेस्ट. सो आफ्टर द परमिशन ऑब्टेनिंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड वी हैव टू ऑब्टेन द परमिशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट जब स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई कर रही होगी हमें. ठीक है. देन वी हैव सेक्शन 43 arrest how made. In making an arrest, the police officer or other person making the same shall actually touch or confine the body of the person to be arrested unless there is submission to the custody by word or action. ठीक है, जो भी पुलिस ऑफिसर या कोई भी पर्सन जो अरेस्ट कर रहा है, ठीक है, दे कैन टच द बॉडी ऑफ द पर्सन टू बी अरेस्टेड ऑब्वियसली. ठीक है, टच नहीं करोगे तो आप उसको कस्टडी में कैसे लोगे? सो दे कैन टच द बॉडी ऑफ दैट पर्सन, बट अगर उस पर्सन ने बाय वर्ड और बाय एक्शन अपनी कस्टडी जो है उसको, मतलब अपनी कस्टडी को बेसिकली वो कोई फोर्स यूज़ नहीं कर रहा है एंड ही हैज़ सबमिटेड हिमसेल्फ टू द कस्टडी सिंपली, कि मतलब वो खुद से जाके उसने हैंडकफ्स पहन लिया, खुद से जाके वो जेल में बैठ गया जाके, तब आपको ज़रूरत नहीं है कोई भी फोर्स यूज़ करने की अनलेस एंड अनटिल ही इज़ नॉट कोऑपरेटिंग विद द पर्सन. Provided that where a woman is to be arrested unless the circumstances indicate to the contrary, her submission to custody on an oral intimation of arrest shall be presumed, and unless the circumstances otherwise require or unless police officer or female police officer shall not touch the person of the women for making arrest. ठीक है, तो बोल रहा है कि जहाँ पे कोई वुमेन को अरेस्ट किया जा रहा है उस केस में उसका सबमिशन टू द कस्टडी ऑन एन ओरल इंटीमेशन ऑफ अरेस्ट शॉल बी प्रिज्यूम. मतलब जब आपने किसी फीमेल को जिसको आपको अरेस्ट करना है आपने उसको बता दिया कि हम तेरे को अरेस्ट करने आए हैं, ठीक है, अब तू अपने आप को चुपचाप से हमको सौंप दे. ठीक है, इसके बाद हम उसका सबमिशन ऑफ कस्टडी प्रिज्यूम करेंगे, मतलब कि अनलेस एंड अनटिल वो सामने से फोर्स यूज़ करे भागने का या एस्केप करने का या फिर एक तरीके से वो डिसअग्री करे अरेस्ट से, तब तक अनलेस एंड अनटिल तब तक कि वी विल प्रिज्यूम
दैट शी इज़ सबमिटिंग हर सेल्फ टू कस्टडी, ठीक है, तब तक हम उस पर कोई फोर्स यूज़ नहीं करेंगे अनलेस द circumstances indicate to the contrary. Circumstances indicate to the contrary means जहाँ वो भागने की कोशिश कर रही है, जहाँ she is trying to use force to get herself out of the custody or to make things difficult for the people arresting her, तब a female police officer, उस केस में only a female police officer will touch that person for making her arrest, ठीक है, ये है अपना women के केस में. Then we have subsection 2. If such person forcibly resists the endeavor to arrest him or attempts to evade the arrest, such police officer or the person may use all means necessary to effect the arrest. ठीक है. अब subsection 1 में हम लोग बोल रहे थे you can touch the person. Subsection 2 में we are saying that you can use all the means necessary for the effect of the arrest if that person is resisting. Subsection 3 states that police officer may, keeping in view the nature and gravity of offence, use handcuff while making the arrest of a person while producing such person before the court who is a habitual repeat offender, who escaped from custody, who has committed organized crime, terrorist act, drug-related crime, illegal possession of arms, ammunition, murder, rape, acid attack, counterfeiting of coins, currency notes, human trafficking, sexual offence against children or offence against the state. Simple है, आप handcuffs किस offence में use कर सकते हो, उस offence की gravity क्या है या कौन सा offence है वो यहाँ पे दिया हुआ है कि police officer may use the handcuffs while making the arrest of a person, ठीक है, या आप जब किसी का अरेस्ट कर रहे हो तब आप यूज़ कर सकते हो, या आप जब उस पर्सन को कोर्ट के बिफोर प्रोड्यूस कर रहे हो या वो कोर्ट के बिफोर अपीयर हो रहा है तब यू कैन यूज़ हैंडकफ. उनके किन केसेस में, जब या तो वो पर्सन हैबिचुअल और रिपीट ऑफेंडर हो, है ना, कि बार बार क्राइम करता आ रहा है वो, ठीक है, कोई भागा हुआ कैदी हो कि वो भाग जाता है कस्टडी से हमेशा, इसलिए हम हैंडकफ्स यूज़ कर रहे हैं, या फिर उसने ये सब कोई क्राइम किए हो, ऑर्गेनाइज क्राइम, टेररिस्ट अटैक, ड्रग रिलेटेड क्राइम, जो भी क्राइम्स यहाँ पे दिए हुए हैं, दी हेडिंग्स द पर्टिकुलर्स दैट हैज़ बिन गिवन, अगर वो उनके अंडर आता है और ही हैज़ बीन अक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग दैट क्राइम, then you can use handcuffs. Subsection 4 states that nothing in this section gives a right to cause the death of a person who is not accused for an offence punishable with death or imprisonment for life, ठीक है. तो इस सेक्शन के अंडर जब यहाँ पे दिए है ना कि सबसेक्शन 2 दैट यू मस्ट यूज़ ऑल मीन्स नेसेसरी फॉर द अरेस्ट, तो सबसेक्शन 4 में उसका एक्सेप्शन भी दिया है कि आप इस सेक्शन के अंडर किसी भी पर्सन की डेथ कॉज नहीं कर सकते उसको अरेस्ट करने के लिए अनलेस वो पर्सन एक ऐसे ऑफेंस के लिए अक्यूज्ड है जिसकी पनिशमेंट या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या तो डेथ है, ठीक है, तब तक के आप उस पर्सन की डेथ कॉज नहीं कर सकते. यू हैव नो राइट टू कॉज द डेथ ऑफ अ पर्सन, और ये सेक्शन 43 आपको कोई राइट नहीं देता है टू कॉज डेथ ऑफ अ पर्सन हु इज़ नॉट अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस दैट इज़ पनिशमेंट. मतलब उसका ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस, मतलब उसका ऑफेंस जो उसने किया है वो इतना सीवियर, इतना सीरियस नहीं है कि उसकी पनिशमेंट जब तक के लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ ना हो तब तक के आप उसकी डेथ कॉज नहीं कर सकते, ठीक है. Subsection 5, save in exceptional circumstances, ठीक है. No women shall be arrested after sunset and before sunrise, and where such exceptional circumstances exist, the women police officer shall, by making a written report, obtain the prior permission of the magistrate at the first class within whose local jurisdiction the offence is committed or the arrest is to be made, ठीक है. अब exceptional circumstances में, ठीक है, exceptional circumstances में किसी भी औरत का, किसी भी वुमेन का अरेस्ट सनसेट, ओके, मतलब कि सनसेट होने के बाद मतलब दिन ढलने के बाद, और बिफोर सनराइज मतलब सूरज उगने के बाद, मतलब सूरज उगने से पहले नहीं होना चाहिए, ठीक है. अनलेस एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट, मतलब कुछ केसेस में, एक्सेप्शनल केसेस में अगर बहुत ज़रूरी हो जाता है ये अरेस्ट, तो व्हाट कैन बी डन, एक वुमेन पुलिस ऑफिसर जो है वो एक रिटन रिपोर्ट बनाएगी और उस रिटन रिपोर्ट से वो अपनी एक प्रायर परमिशन ऑब्टेन करेगी मैजिस्ट्रेट की फॉर दी अरेस्ट, मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट की, जो कि उसके लोकल जुरिस्डिक्शन पे ही कैन ट्राई द केसेस. उसकी एक फीमेल पुलिस ऑफिसर जो है परमिशन ऑब्टेन करने के लिए एक रिपोर्ट बनाएगी, और आफ्टर द परमिशन इज ऑब्टेन्ड द अरेस्ट कैन बी मेड. अगर वो परमिशन दे देता है मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास परमिशन दे देता है अरेस्ट के लिए, देन द अरेस्ट कैन बी मेड, ठीक है. Then we have section 44, search of place entered by persons ought to be arrested, ठीक है. मतलब कि
अगर जिसको अरेस्ट करना है वो किसी जगह में घुस गया है तो हमारे पास क्या राइट है उस जगह को सर्च करने का, ठीक है। अगर कोई ऐसी बिल्डिंग, अपार्टमेंट या कोई ऐसी घर में या फिर कोई भी ऐसी जगह में घुस गया है जहाँ पे पुलिस को जाके उसको अरेस्ट करना पड़ रहा है, तो तब पुलिस के पास क्या राइट है, ठीक है, सेक्शन 44 में। Subsection 1 states that if any person acting under warrant of arrest or any police officer having authority to arrest has reason to believe that person to be arrested has entered into or within any place, any person residing in and remaining in charge of such place shall on demand of such person acting as aforesaid or such police officer allow him free ingress thereto and afford all reasonable facilities for a search therein. Simply, अगर कोई भी person जिसको arrest करना है एंड द पर्सन इज अरेस्टिंग अंडर वारंट, मतलब लॉफुली अरेस्ट कर रहा है वो पर्सन, ठीक है। कोई भी पुलिस ऑफिसर जिसके पास अथॉरिटी है किसी भी पर्सन को अरेस्ट करने की लॉफुली विद वारंट, ठीक है, अगर उसको लग रहा है कि जिस पर्सन को अरेस्ट करना है, जो अक्यूज्ड है, वो एक जगह में घुस गया है, ठीक है, ही हैज़ एंटर्ड इनटू अ प्लेस, तो जो भी पर्सन वहाँ रह रहा होगा, उस घर में रह रहा है, उस जगह पे रह रहा है, जो भी पर्सन, एनी पर्सन रिसाइडिंग इन, ठीक है, सिंपली और बीइंग इंचार्ज ऑफ, या जो उसका इंचार्ज है उस समय उस जगह का जो भी इंचार्ज है ऑफ सच प्लेस ऑन डिमांड ऑफ सच पर्सन। ऑन डिमांड ऑफ सच पर्सन मतलब जब पुलिस ऑफिसर उससे रिक्वेस्ट करे या पुलिस ऑफिसर डिमांड करे परमिशन, ठीक है, जब पुलिस ऑफिसर उस पर्सन से जो वहाँ रह रहा है या जो उसका इंचार्ज है, जिसका ओनर है, उससे डिमांड करे परमिशन, तो उस पर्सन को ही शॉल अलाउ द पुलिस ऑफिसर फ्री इनग्रेस एंड अफोर्ड ऑल रीजनेबल फैसिलिटीज़ फॉर अ सर्च देयर इन, सिंपली, ठीक है। तो उस पर्सन का जो ओनर है या जो वहाँ रह रहा है वो सिंपली उस पुलिस ऑफिसर को ऑन डिमांड, जब वो परमिशन मांग रहा है, ठीक है, उस प्लेस को एंटर करने की, वो सिंपली उसको परमिशन दे दे और साथ में वो सारी फैसिलिटीज़ भी दे जो जिससे कि उसकी सर्च जो है वो कंप्लीट हो जाए और वो उस पर्सन को अरेस्ट कर सके, ठीक है। सबसेक्शन 2 सेज इफ इनग्रेस टू सच प्लेस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड अंडर सबसेक्शन 1। अब अगर वो परमिशन नहीं दे रहा है, ठीक है, जो बंदा वहाँ रह रहा है और जो बंदे की वो जगह है वो पर्सन परमिशन नहीं देता है पुलिस ऑफिसर को, तब क्या करेंगे, सबसेक्शन 2 में बता रहे हैं, ठीक है। इफ इनग्रेस टू सच प्लेस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, it shall be lawful in any case for a person acting under a warrant and in any case in which a warrant may issue but cannot be obtained without affording the person to be arrested an opportunity of escape for a police officer to enter such place, search therein in order to effect an entrance into such place, to break open an outer inner door, window, house of place, whether that of person to be arrested or any other person, if after notification of his authority and purpose and demand of admittance duly made he cannot otherwise obtain admittance, ठीक है। सिंपल है, अगर उसको परमिशन नहीं मिल रही है जो वहाँ रह रहा है उससे या फिर उसके ओनर से, वो क्या करेगा, इफ़ ही इज़ एक्टिंग अंडर अ लॉफुल वारंट, अगर पुलिस ऑफिसर के पास एक लॉफुल वारंट है उसको अरेस्ट करने का, ठीक है, और उस वारंट के अंदर भी वो उससे परमिशन नहीं ले पा रहा है, उस पर्सन से, उस ओनर से वो परमिशन उस वारंट के अंदर भी नहीं ले पा रहा है, ठीक है, पुलिस ऑफिसर सिंपली वो जगह को तोड़ के घुस जाएगा, मतलब कि जो भी उसका एंट्रेंस डोर विंडो जो भी है, ठीक है, then police officer simply to search that place and to arrest that person he can simply make an entrance by breaking open an outer inner door, कोई भी डोर विंडो उस जगह की, उस हाउस की या उस प्लेस की, whether that of person to be arrested or of any other person, भले वो जगह वो घर उसका हो जो पर्सन को अरेस्ट करना या किसी और पर्सन का हो, वो सिंपली क्या करेगा, उस जगह के विंडो या डोर को तोड़ के अंदर घुस जाएगा, ठीक है। If after notification of his authority and purpose and demand of admittance duly made, he cannot otherwise obtain admittance, ठीक है। वो कब ये कर सकता है, जब नोटिफाई करने के बाद ऑफ हिज अथॉरिटी, ठीक है, मतलब कि उस पर्सन को बताने के बाद कि मैं किस अथॉरिटी से और किस पर्पस से यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, ठीक है, और डिमांड करने के बाद भी जब उसको परमिशन नहीं मिल पा रही है, ठीक है, ही कैन नॉट गेट एडमिशन ऑफ दैट पर्सन, जो उस पर्सन में रह रहा है या जिसका ओनर है, जो उस प्लेस का ओनर है, वो सिंपली क्या करेगा, उस जगह को तोड़ सकता है, ठीक है। ये सबसेक्शन 2 में बोल रहा है, जब आपके पास आपको परमिशन नहीं मिल रही है सबसेक्शन 1 में, डिमांड करने के बावजूद नहीं मिल रही है, आप सिंपली आप उसको जो भी डोर विंडो है, अगर आपके पास लॉफुल वारंट है, वारंट ऑफ अरेस्ट है, ठीक है, और आप एक अथॉरिटी के अंडर एक्ट कर रहे हो, ठीक है, तब यू कैन जस्ट सिंपली गो एंड ब्रेक दैट door or window, whatever, provided that if any such place in apartment in the actual occupancy of a female, not being the person to be arrested, according to custom, does not appear in public, and such person or police officer shall before entering such apartment give notice to such female that she is at liberty to withdraw, shall afford her every reasonable facility for withdrawing, and may then break open the apartment and enter it. Simply
प्रोविज़न ये बोल रहा है कि जब वो जगह जहाँ पे अक्यूज घुस गया है, वो जगह जहाँ पे सर्च करनी है, वो जगह में कोई ऐसी फीमेल रह रही हो, एक वुमेन रह रही हो जो कि पब्लिक में अपीयर नहीं होती है अंडर अ कस्टम, ठीक है। कोई भी ऐसी वुमेन रह रही हो जिसको पब्लिक में अपीयर नहीं हो, कई बार कुछ कस्टम्स के अकॉर्डिंग, कुछ रिलीजन्स में कई बार वुमेन्स को नहीं अपीयर होना होता है पब्लिक में, ठीक है, राइट। तो अगर ऐसा कोई केस है तो पुलिस ऑफिसर उस जगह में एंटर होने से पहले सिंपली उस वुमेन को बोल देगा कि देखो मैं इस अपार्टमेंट में अब एंटर होने वाला हूँ, अभी तुम्हारे पास पूरा यू आर एट लिबर्टी कि तुम यहाँ से निकल जाओ, ठीक है। शी इज़ एट लिबर्टी टू विदड्रॉ, द पुलिस ऑफिसर नीड्स टू बिफोर एंटरिंग ही नीड्स टू टेल दैट वुमेन, ठीक है, कि तुम ही नीड्स टू गिव नोटिस टू दैट वुमेन कि शी इज़ एट लिबर्टी टू विदड्रॉ, ठीक है। लिबर्टी टू विदड्रॉ मतलब वो निकलने के लिए, ही कैन टोटली गेट आउट ऑफ दैट अपार्टमेंट राइट नाउ, और उस पुलिस ऑफिसर को हर रीजनेबल फैसिलिटी देनी पड़ेगी उस वुमेन को निकलने के लिए, हर तरफ से रास्ता देना पड़ेगा कि तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम वहाँ से निकल जाओ, और एक बार वो वहाँ से निकल जाए देन ही कैन ब्रेक द ओपन द अपार्टमेंट एंड देन ही कैन एंटर इट, ठीक है। Subsection 3. Any police officer or other person authorized to make an arrest may break open any outer or inner door or window of any house or place in order to liberate himself or any other person who having lawfully entered for the purpose of making an arrest is detained there, ठीक है। तो कोई भी पर्सन, कोई भी पुलिस ऑफिसर या कोई भी लीगली ऑथराइज पर्सन जो एक जगह अरेस्ट करने के लिए घुसा है, ठीक है, वो उस जगह से बाहर निकलने के लिए कोई भी आउटर इनर डोर या विंडो तोड़ सकता है उस जगह से बाहर निकलने के लिए, ठीक है, अगर वो वहाँ पे फंस गया हो, ठीक है। मतलब कोई भी पुलिस ऑफिसर अगर कोई ऐसी जगह गया हो, ठीक है, इफ़ ही इज ट्रैप्ड इन अ प्लेस जो अरेस्ट करने के लिए वो घुसा हो, ठीक है, और अब वो वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा है, ठीक है, तो वो सिंपली क्या करेगा, वहाँ का कोई भी दरवाज़ा ही इज़ ऑथराइज टू ब्रेक ओपन दैट एंड ही कैन क्विकली जस्ट गेट आउट ऑफ दैट प्लेस, ठीक है। ऐसा बहुत बार होता है कि लाइक आई थिंक एक्शन मूवीज़ में यू माइट हैव सीन अ लॉट, ठीक है, कि पुलिस कोई भी जगह फटाक से घुस जाती है, ठीक है, मतलब वहाँ पे टेररिस्ट हैं एंड यू नो पुलिस इज़ जस्ट लाइक एंटरिंग एनीथिंग, वो इधर उधर का दरवाज़ा तोड़ फोड़ के घुस जाती है कोई भी जगह पे, ठीक है। तो उसकी जो ऑथराइजेशन है ना उस जगह पे एंटर करने के, उस जगह से निकलने की बाहर, ठीक है, कोई भी चीज़ को तोड़ फोड़ के, वो ऑथराइजेशन आपकी आती है सेक्शन 44 से, ये याद रखना, ठीक है। सेक्शन 44 1 और 2 में आपको एंटर करने की ऑथराइजेशन है, सेक्शन 3 में आपको कोई भी दरवाज़ा खिड़की तोड़ के बाहर निकलने की भी ऑथराइजेशन है आपको, मतलब पुलिस ऑफिसर को, ठीक है, मतलब नॉट एवरी पर्सन कैन डू दैट, पुलिस ऑफिसर दैट इज एक्टिंग अंडर अ लॉफुल वारंट और अ पुलिस ऑफिसर दैट इज लीगली ऑथराइज, ठीक है, ओनली दैट पर्सन, okay. Then we have section 45. What does it says? A police officer pursuit of offenders in other jurisdiction. A police officer may, for the purpose of arresting without warrant any person whom he is authorized to arrest, pursue such person to any place in India. Simply आपको जब किसी पर्सन को अरेस्ट करने का बिना वारंट, जब पुलिस ऑफिसर को किसी भी पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट करने का ऑथराइजेशन मिल जाता है, तो पुलिस ऑफिसर उस पर्सन को इरिस्पेक्टिव ऑफ द जुरिसडिक्शन इंडिया की कोई भी जगह में जाके अरेस्ट कर सकता है, ठीक है। परस्यूट ऑफ ऑफेंडर्स इनटू अदर जुरिसडिक्शन, मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ द जुरिसडिक्शन, क्या जुरिसडिक्शन है, वो किस जगह पहुंच गया है, ठीक है, तो वो फर्क नहीं पड़ता, ही कैन अरेस्ट दैट पर्सन in any place in India. Simple. Section 45 states that. Section 46 states that no unnecessary restraint. The person arrested shall not be subjected to more restraint that is necessary to prevent his escape. Simple है, जो भी पर्सन को अरेस्ट किया है वो उस पर आप एक लिमिट से ज़्यादा जोर नहीं लगा सकते, ठीक है। आप सिर्फ उस पर तब तक फोर्स यूज़ कर सकते हो जितना फोर्स उसके एस्केप और उसके भागने को बचाने के लिए, मतलब वो भागे ना उसके लिए ज़रूरी है। यू कैन यूज़ ओनली दैट मच फोर्स और यू कैन यूज़ ओनली दैट मच रिस्ट्रेंट ऑन दैट पर्सन, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे. I hope you have understood and thank you for watching the video.